नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के ITI कॉलेज में अमृत महोत्सव कार्यक्रम। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन द्वारा बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 5 जुलाई को प्रदर्शन। शिवमोगा अस्पताल में 14 बच्चों के बीमार पड़ने के बाद डॉक्टरों को संक्रमण की आशंका। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के चैप्टर ने तीस्ता से तलवार की तत्काल रिलीज की मांग की। G7 समिट में दुनिया के दिग्गज नेताओं के लिए यूपी से गिफ्ट लेकर पहुंचे थे पीएम मोदी। मुंबई लौटकर आइए और मुझसे बात कीजिए, गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों से बोले उद्धव ठाकरे। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर शहर के ITI कॉलेज में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन कलबुर्गी द्वारा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबान ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर खुबान ने भाजपा की मोदी सरकार के 8 साल के कार्यक्रम का विवरण किया और इस अवसर पर सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी की गई योजनाओं की एक पुस्तक भी जारी की गई। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸೇವೆ, ಸುಶಾಸನ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ 81 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಾನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ಲಾಭವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮಾತೃವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಮಗು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಮಗುವಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಸಿಗಬೇಕು। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन आने वाले माह की 5 तारीख को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। उसके साथ ही आने वाले दिनों में दिल्ली में भी प्रदर्शन किया जाएगा। यह बात एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुधाकर राजगिरा ने कही। वह शहर के एक निजी होटल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर एसोसिएशन के राज्य कार्यदर्शी प्रकाश मुढ़ो, जिला कार्याध्यक्ष अशोक लोखंडे, महेश पालम सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ನಾವು ಸುಮಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಾದಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆ ಕಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೋಡಂನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು। ಯಾಕಂದರೆ ಕೈ ಕಾಟ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಹೋರಾಟ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆವು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆವು। ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಜ್ ಕಾಟ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಆ ಕಾಟ ಕೂಡಬೇಕಂತ ನಾವು ನಿರಂತರವಲ್ಲ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೆವು। ಅದು ಒಂದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಂಥ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು। ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸವಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ನಾವು ನಿರಂತರ ಇಕ್ತೇವಂತ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಅದೇ ಥರ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರದು 65 ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿಕ್ಕಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಎತ್ತಿಡ್ದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ನಪ್ಪಗೂ ಈ ಸವಾಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಪಾಲಂ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಂಘದ। ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ।
ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ 150 200 ಕಾರ್ಡ್ಗಳೈತೆ. ಅದು ಏನು ಕಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮನೆ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿದು ಕಿರಾಯ, ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ತೂಕ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಏನಾರ ಪಗಾರ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಏನು ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿದು. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಐತೆ 600ಕ್ಕೂ 700 ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಗರನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ 150 200 ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಬೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿದವರಿಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡದು ಸಿಟಿ ಯಾವುದರ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಯಾವುದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ 1,000 ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, नमगा कम से कम। बीदर शहर के भूमरेड्डी कॉलेज में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन श्री ज्योति मायानंद स्वामी जी ने किया। कन्नड़ तथा संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित आजादी महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत आज शहर के बीवीबी कॉलेज से की गई, जो राज्य के अन्य लोगों तक जाएगी और जागृति फैलाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर वसंत कुमार, सुरेश चंद शेट्टी, रेवण सिद्धप्पा जलादे, विजय कुमार पाटिल गादगी और गुरुनाथ राजगीरा सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಹೊರತು ಧೀರನ ಏನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಯುವಕರನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ನಾವೇ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ, ಎಷ್ಟು ಬಲಿದಾನ, ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ದಿವ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಂತ ಮಹಾಕೊರೋನಾ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ಇತಿಹಾಸದ ದೇಶದ 75 ವಸಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 100 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ನಮಗೂ ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೆ, ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ಯಾರು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯದವರು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವಿದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಂದರೆ ಕ್ರೌರ್ಯವಲ್ಲ, ಪರಾಕ್ರಮ ಎಂದರೆ ಕ್ರೌರ್ಯವಲ್ಲ, ವೀರತ್ವ ಎಂದರೆ ಕ್ರೌರ್ಯವಲ್ಲ. ವೀರರಸಕ್ಕೂ ಕ್ರೋಧರಸಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ವೀರರಸದ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಉತ್ಸಾಹ, ಸಾವಿನ ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯೌವನ, ಅದು ಉತ್ಸಾಹ, ಅದು ಪರಾಕ್ರಮ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರೌರ್ಯ. ಪರಾಕ್ರಮ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಶಕ್ತಿ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿರುವಂಥ ದುಷ್ಟತೆ. ಇವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಭಾರತ ಜಾತಿಗಳಿವೆ, ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ವಿಧವೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಭಾರತದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುರ್ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ
ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಜು ಬಂದು ಪೂಜೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಜಿಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ನಾವು ನೋಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ವಿವೇಚನೆಗಳು ಯಾಕಡೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಪುರ್ಸತ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತೇನು ಬಹಳ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಲಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಿಗ್ತೋ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶ ನಲುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವತ್ತು 70-75% ಬಡತನ ಅವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ 15-20% ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಆ ಬಡತನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವ ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಮಠ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಿರ್ಬೋದು, ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯುವ ಜನತೆನೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. 1857 स्वातंत्र होराट इरबहुदु। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कलबुर्गी में क्षमा जीवदा वेदी के द्वारा प्रदर्शन करके जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर कहा गया कि ग्राम विद्युत कर्मियों को नौकरी से न हटाया जाए। वह प्रति माह घर घर जाकर बिल की वसूली कर अपना काम कर रहे हैं। इस अवसर पर वेदिके के अध्यक्ष चंद्रकांत हिरेमठ ने मीडिया से बात की। कलबुर्गी से मशहूद आलम की रिपोर्ट। ये लोग ग्राम विद्युत प्रतिनिधि बोल के केड़े गांव में इलेक्ट्रिसिटी, कर्नाटक गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम करने वाला नौकर है। ये लोगों उनका 2000-3000 कस्टमर को हर महीने को बिल इशू करना, कलेक्शन करना, और ये दे आर दी ओरिजिनल एम्प्लॉयज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स। इनको कायम करो बोले तो कायम नहीं करे गवर्नमेंट। हमारा हाईकोर्ट भी हमारा जो वादा है उसको अपील करके ये लोगों को कायम करना बोल के ऑर्डर दिया, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अब कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर और पावर मिनिस्टर सुनील कुमार को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी 15 दिन का अंदर आप कायम करना, नहीं करे तो बेंगलुरु में 4500 लोग जो जीवीपीआई कर्नाटक स्टेट में पूरा लोग हम इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक को बैठने वाला है। वो मौका मत दो, बहुत जल्दी आप रेगुलराइज हम लोगों को करो बोल के हम। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के एक सरकारी अस्पताल में सोमवार 27 जून को डॉक्टरों ने कहा कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बाद गंभीर रूप से बीमार हुए 14 बच्चे अब स्थिर है और ठीक हो रहे हैं। घटना के बाद प्रतिक्रिया के कारण 10 महीनों से 12 साल की उम्र के बच्चों को बुखार, उल्टी और कंपकंपी का अनुभव हुआ, जबकि क्या गलत हुआ इस पर एक अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि प्रतिकूल प्रतिक्रिया का एक संभावित कारण उपभोग्य सामग्री, सिरिंज, ट्यूब, सुई के संदूषण के कारण हो सकता है, जिनका उपयोग बच्चों में एंटीबायोटिक दवाओं को इंजेक्ट करने के लिए किया गया था। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स कर्नाटक चैप्टर ने पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए उनकी गिरफ्तारी को न्याय का गला बताया है। एक प्रेस बयान में एपीसीआर ने तिस्ता सीतलवाड़ को मानवाधिकारों का एक अथक रक्षक करार दिया और उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला देते हुए गुजरात एटीएस द्वारा संदिग्ध आधार पर तिस्ता की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। एपीसीआर कर्नाटक चैप्टर के महासचिव एडवोकेट मोहम्मद नियाज ने एक बयान में कहा, यह अस्वीकार्य है कि नागरिकों के न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्ति पर सबूत बनाने और विशेष जांच दल को गुमराह करने का आरोप लगाया जाना चाहिए। एपीसीआर उसकी रिहाई, झूठे मामले को वापस लेने और उत्पीड़न की समाप्ति की मांग करता है। सैयद यासीन ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे के लिए पार्टी की अपनी लॉजिक होती है। कुछ फैक्ट्स पर पार्टी के प्रति कार्यकर्ता की वफादारी सहित अन्य मुद्दे होते हैं। ऐसे ही किसी को टिकट नहीं मिलता। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए
जर्मनी की यात्रा पर थे। पीएम मोदी 26-27 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब जर्मनी पहुंचे तो यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। G7 समिट में शामिल नेताओं को पीएम ने खास गिफ्ट दिए हैं। पीएम ने भारत की समृद्ध कला और शिल्प को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न उपहारों जैसे हाथ से बुना हुआ कालीन, नक्काशीदार मटका, ITR बोतलें, चाय का सेट, ब्रोच और कफलिंग नेताओं को भेंट किए, जिनमें से ज्यादातर गिफ्ट यूपी के शहरों से ले जाए गए थे। जर्मन चांसलर को पीएम मोदी ने मेटल मरोड़ी नक्काशी वाला मटका उपहार में दिया। ये पीतल का बर्तन जिला मुरादाबाद से एक उत्कृष्ट कृति है, जिसे भारत की पीतल नगरी की पहचान के तौर पर भी जाना जाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गुलाबी मीनाकारी ब्रोच और कफलिंग सेट उपहार में दिया। गुलाबी मीनाकारी उत्तर प्रदेश में वाराणसी का एक GI टैग की गई कला है। शिवसेना में बागी एकनाथ शिंदे गुट और ठाकरे कैंप में अदालती लड़ाई के बीच एक बार फिर नरमी का रुख दिखाई पड़ा है। गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों से उद्धव ठाकरे ने कहा है, मुंबई लौटकर आइए और मुझसे बात कीजिए। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच शुरुआती दौर की वार्ता के बाद ही गतिरोध आ गया था। शिवसेना के बागी विधायक की संख्या करीब 40 है और उनके साथ करीब 10 निर्दलीय विधायक भी है। ऑल न्यूड के फाउंडर जुबैन को धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जुबैर की गिरफ्तारी पर आप पार्टी के नेता संजय सिन्हा ने कहा कि असल में जुबैर को सच उजागर करने की सजा मिल रही है। बीजेपी के IT सेल के द्वारा या जो उनके गलत बयानबाजी होती है उनका सच देश के सामने रखा। ऐसे में तो इसकी सराहना होनी चाहिए और जो लोग सच का उजागर करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई किस पर हो रही है? उल्टा जुबैर पर हो रही है। और इसका आधार क्या है? 2018 का ट्वीट। जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उसका एक फॉलोवर है। अगर किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता है ट्वीट से, कहीं उसको लेकर कोई हिंसा हुई, उसको लेकर कोई वाद विवाद हुआ, घटना हुई, उसके आधार पर आप FIR लिखेंगे। आप 2018 की घटना के 4 साल बाद FIR लिखेंगे। जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अगवानापुर क्षेत्र में कांठ रोड पुल के नीचे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिस वजह से वह घायल हो गया, तो वही एक बदमाश मौका पाकर फरार हो गया। बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग भी की गई, जिसमें पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा में चलाए गए फायर में से एक बदमाश मोहसिम निवासी अगवानपुर के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने उसे मौके से ही पकड़ लिया एवं दूसरा आरोपी नासिर निवासी अगवानपुर मौका पाकर फरार हो गया। पकड़ा गया आरोपी गो तस्करी में फरार चल रहा था एवं पुलिस ने उस पर 20,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। आज रात्रि में लगभग 3 बजे थाना सिविल लाइंस पुलिस अगवानपुर चौकी क्षेत्र में जब ये तलाशी कर रहे थे, दबिश कर रहे थे, उसी दौरान एक पुलिस पार्टी पर किसी की तरफ से एक फायर किया गया अज्ञात बदमाश की तरफ से। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ है। पूछताछ पर उसने अपना नाम मोहसिन पुत्र इंतजार बताया है, जो अगवानपुर क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर पूर्व के कई मुकदमे गौकशी के हैं और ये थाने से वांछित भी था, जिस पर 20,000 का इनाम भी है इसके ऊपर। इसका एक अन्य साथी जिसका नाम नासिर है, वो मौके पर इसके साथ था और जो मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग गया है। और ये एक महत्वपूर्ण सफलता पुलिस को मिली है, सिविल लाइंस पुलिस को। इनके इस गिरफ्तारी से अवैध गौकशी पर प्रभावी अंकुश लगेगा। गुवाहाटी होटल के आसपास का इलाका अब एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र के गढ़ जैसा दिखने लगा है। इसी होटल में पिछले एक हफ्ते से एकनाथ शिंदे अपने बागी साथी विधायकों के साथ रह रहे हैं। असम सरकार द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। इस बीच होटल के चारों तरफ समर्थक नारों वाले होर्डिंग लगा दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैंप ने अपनी होटल बुकिंग 5 जुलाई तक बढ़ा दी है। होटल के अंदर हो रहे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक राजनीतिक सूत्र ने कहा कि बागी विधायक गुवाहाटी से तभी जाएंगे जब उनकी कहीं उपस्थिति की जरूरत होगी। पूरी संभावना है कि यह एक दिन पहले या महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के दिन हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि शिंदे वकीलों और संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, लेकिन संभावित शक्ति परीक्षण पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर के एक शॉपिंग मॉल पर रूस ने मिसाइल से हमला बोला। हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, वहीं 59 लोग घायल हो गए।
उस वक्त की जानकारी यूक्रेन के इमरजेंसी सर्विस के प्रमुख ने मंगलवार को दी है। टेलीग्राम पर सर्गेई क्रुक ने बताया कि अब तक हम 16 मृत और 59 घायलों के बारे में जानते हैं। उनमें से 25 अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी है। मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि हमले के बाद मॉल में भीषण आग लग गई है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि 1000 से अधिक नागरिक मॉल में थे जब मिसाइलों ने शहर पर हमला किया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के ITI कॉलेज में अमृत महोत्सव कार्यक्रम। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट फेड प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन द्वारा बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 5 जुलाई को प्रदर्शन। शिवमोगा अस्पताल में 14 बच्चों के बीमार पड़ने के बाद डॉक्टरों को संक्रमण की आशंका। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के चैप्टर ने तीस्ता से तलवार की तत्काल रिलीज की मांग की। G7 समिट में दुनिया के दिग्गज नेताओं के लिए यूपी से गिफ्ट लेकर पहुंचे थे पीएम मोदी। मुंबई लौटकर आइए और मुझसे बात कीजिए, गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों से बोले उद्धव ठाकरे। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।